Good morning, students. Today we read chapter 7 in geography and the topic is India in the world. You all well know that we live in India and the name of our country is India. What is the location of India? What is the population of India? And what is the longitude and latitude of India? We all read and get knowledge about to read this chapter. Okay, here are some description about India. That what is the length of India, what is the breadth of India, what is the area of India, and what is the location, what is latitude and what is longitude, what are neighboring countries, what are position of terms in area. These all are included in this chapter. So we start our chapter. So what is the length of India? The length of India is 3,240 kilometers from north to south. What is the breadth? The breadth is 2,933 kilometers from east to west. What is the area? 32,87,263 kilometers square. Location is in the northeastern hemisphere. Latitude is 8 degree 4 Celsius, 37 degree 6 northern hemisphere. 6th is longitude 67 degree 7 Celsius, 97 degree 25 degree Celsius. Here is some description about India. Now we start our chapter and I am reading the chapter India in the world. India is a country of great geographical extent. In the previous chapters we all read about that there are very geographical extents. Like आप लोगों को पता है कि यहाँ कभी बारिश होती है, कभी गर्मी होती है, कभी सीजन चेंज होते हैं, तो इंडिया में बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं. The area of our country is 32,87,263 square kilometer. तो हमारी जो लेंथ है वो इतनी है. It is the 7th largest country in terms of area and the second most populous country in the world. तो एरिया के हिसाब से ये 7th सबसे बड़ी कंट्री है और पॉपुलेशन के हिसाब से ये कौन सी कंट्री है? हमारी सेकंड. ठीक है. The huge expanse of India contains a variety of natural landscapes ranging from the snow heights of the mountain ranges in the north, the West Indo-Gangetic Plains, the Thar Desert in the west, the Deccan Plateau and the coastal plains that extend from the Ganga Delta in Bengal to Kutch in Gujarat. अब देखो कि हमारे भारत का विस्तार यहाँ एक्सपेंस मतलब उसका विस्तार इतना है, वो इतना बड़ा है कि ये सारी चीजें वहाँ पर क्या है कि नेचुरल लैंडस्केप भी है, बर्फ के पहाड़ भी हैं, माउंटेन रेंजेस भी है, गैंगेटिक प्लेन भी है. तो जैसे बंगाल से लेके कच्छ तक और गुजरात तक इतना हमारा इंडिया का जो है वो लोकेशन जो है वो फैला हुआ है. इंडिया नॉट ओनली हैज ग्रेट जियोग्राफिक प्रॉस्पेरिटी बट इट्स हिस्ट्री आल्सो गोज बैक टू एटलीस्ट 5,000 ईयर. कि ज्योग्राफिकल इसकी हिस्ट्री नहीं है, हिस्ट्री भी इसकी कितनी पुरानी है? हमारी 5,000 सालों पुरानी इसकी हिस्ट्री है. यानी कि इंडिया जो है वो बहुत ही हिस्टोरिकल कंट्री है according to geography, according to history. What is the location of India? India is located in the world largest continent, Asia. अब कहाँ पर ये situated? एशिया में है. It lies completely to the north of the equator, hence it belongs to the north hemisphere. ठीक है. ये कहाँ पर है? नॉर्थ इक्वेटर पर है, तो ये कहाँ पर है? नदर्न हेमिस्फीयर में है. India is also situated to the east of the prime meridian, thus it lies in the east hemisphere in the northern east hemisphere of the earth. नॉर्थ में भी और ये थोड़ा ईस्ट में भी फैला हुआ है, तो यहाँ पर हमें ईस्ट की भी इन्होंने लेंथ बता रखी है. India stretches between 8 degree 4 north to 37 degree 69 to north latitude and from 68 degree 7 Celsius east to 97 degree 25 E longitude. So it is the location of India. The mainland of India is a large peninsula as it is surrounded by water bodies on 3 sides. The Indian Ocean in the south, the Bay of Bengal in the east and Arabian Sea in the west. अब क्या है? इंडिया जहाँ लोकेटेड वहाँ क्या तीन तरफ हमारे तीनों तरफ पानी है. कौन कौन से है देखो आप? बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड कन्याकुमारी. ओके. इंडियन ओशन. कन्याकुमारी इज सिचुएटेड एट द southern most point of the Indian mainland. और ये जो कन्याकुमारी है कहाँ पर है? हमारा southern most point इंडियन mainland के ऊपर है. यानी कि इसमें
इंडिया के तीनों तरफ क्या है, पानी है, ये पानियों से घिरा हुआ एक द्वीप है। द लक्षद्वीप आइलैंड लाइज टू द साउथ वेस्ट ऑफ द इंडियन mainland, लक्षद्वीप आइलैंड भी है। दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड कंसिस्ट ऑफ 36 कोरल आइलैंड। अब इस ग्रुप में कितने 36 आइलैंड हैं छोटे छोटे। Likewise, the Andaman and Nicobar group of islands lie in the Bay of Bengal to the southeast of India, which includes 572 islands. अब इसके अंदर में कितने सारे islands हैं? 572 islands हैं। The southernmost point of the Indian Union in the Indira Point, which is located in the Great Nicobar Island. अब ये जो इंदिरा पॉइंट है ये कहाँ पर सिचुएटेड है? ग्रेट निकोबार आइलैंड के अंदर। The Tropic of Cancer passes almost midway through the country and thus provides sufficient amount of temperature for agriculture purposes. अब ये ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है ये भी इंडिया में होके निकलती है, तो इससे क्या होता है कि जो खेती होती है वो बहुत ही इसकी वजह से जो मौसम बनता है या इसकी वजह से जो भी चेंजेस आते हैं वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। Being a subtropical country, India also receives good amount of rainfall. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, बारिश भी अच्छी होती है। The 82.5 degree E longitude passes almost halfway through India. We know that the local time of a place changes by 4 minutes for every 1 degree of longitude. ठीक है, आपको समझ में आया कि 4 मिनट बाद हमारा जो समय होता है वो चेंज हो जाता है। Thus, the difference in 29 degree of the prime meridian gives a time lag of nearly 2 hours. तो जैसे जैसे इसकी दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो टाइम का जो ड्यूरेशन होता है वो भी बढ़ता जाता है। ये 4 मिनट से लेकर 2 घंटे भी आगे पीछे हो जाता है। Between अरुणाचल प्रदेश in the east and गुजरात in the west in their local stand. जो हमें यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात की जो टाइमिंग जो आती है उनमें चेंजेस होता है। In the other word, the sun rises 2 hours earlier in the east in Arunachal Pradesh than in the west in Gujarat. जो सन जो है वो राइज होता है वो ईस्ट में पहले होता है और गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में सनराइजेस में भी कितना 2 आवर्स का डिफरेंसेस रहता है। The follow the same time and to avoid confusion, the central longitude 82.5 degree east has been chosen as the standard meridian of India. तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोगों ने स्टैंडर्ड मेरिडियन को फॉलो किया है। The time on this meridian is referred as the Indian Standard Time (IST). The IST is ahead of the GMT by 5 hours 30 minutes. Okay? तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को हमने माना है और उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं तो वो कैसे होता है 5 आवर्स और 30 मिनट्स के डिफरेंसेस पे वो पूरा सेट हुआ है। तो उस टाइम से हमें टाइम के बारे में करेक्ट पता चलता है। इंडियाज बाउंड्रीज एंड नेबरिंग कंट्रीज। अब इंडिया की बाउंड्रीज पे कौन कौन सी कंट्री स्टेट्स हैं, कौन कौन सी कंट्रीज है और इसकी नेबरिंग में कौन कौन से हमारे हैं, कौन कौन हमारे नेबर हैं इंडिया के, वो हमें इसके बारे में पता चलेगा। The Great Himalayan Range in the north, the Arabian Sea in the southwest, the Bay of Bengal in southeast, and the Indian Ocean in the south form the geographical boundaries of India. So these are all the geographical boundaries of India. कि साउथ ईस्ट में कौन सा है, ईस्ट में कौन सा है, ये सारी चीजें हैं। जैसे कि अरेबियन सी हिमालयन रेंज है हमारी नॉर्थ में, अरेबियन सी है हमारा साउथ वेस्ट में, बे ऑफ बंगाल है हमारा साउथ ईस्ट में, इंडियन ओशन है हमारा साउथ में, ठीक है। और ये सारी बाउंड्रीज हमारी बनी हुई है इस तरह से। द कंट्रीज विच शेयर देयर टेरेस्ट्रियल बाउंड्रीज विद इंडिया। अब जो अपनी टेरेस्ट्रियल बाउंड्रीज जो शेयर कर रही है वो कौन कौन सी है? फर्स्ट है इन द वेस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। सेकेंड है इन द नॉर्थ में है चाइना, नेपाल एंड भूटान। थर्ड है हमारा इन द ईस्ट में हमारा बांग्लादेश एंड म्यांमार। फोर्थ है श्रीलंका एंड मालदीव्स आर आवर नियरेस्ट नेबरिंग अक्रॉस द सी। द नेहरू पाक स्टेट एंड द गल्फ ऑफ मैनस सेपरेट श्रीलंका एंड इंडिया। ठीक है, ये हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज है अक्रॉस द सी, ये हमारे सबसे ज़्यादा नेबरिंग है। और ये गल्फ ऑफ जो मैनस है किसको सेपरेट करती है? श्रीलंका और इंडिया को सेपरेट करती है। इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव्स, बांग्लादेश एंड भूटान टुगेदर आर कॉल्ड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स भी कहलाते हैं। द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज अ नेचुरली डेमोक्रेटिक एंटाइटी, हैड अ डिस्टिंक्ट फिजिकल, कल्चर एंड सोशो इकोनॉमिक आइडेंटिटी,
which separate it from the rest of Asia. अब यहाँ के कल्चर अलग होता है, यहाँ के लोग अलग होते हैं, यहाँ की लैंग्वेज अलग होती है, यहाँ की कस्टम अलग होती है, तो ये क्या करता है, जो रेस्ट ऑफ जो पार्ट बच रहा है वो उसको उससे सेपरेट करता है। अब यहाँ पर देखो आप इंडिया एट ए ग्लांस में आपको बता रखा है कि शॉर्ट में हम इंडिया को कैसे समझ सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, बोर्ड पे लिखा हुआ है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। लेंथ 3214 किलोमीटर्स नॉर्थ टू साउथ, ब्रेथ है 2933 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, एरिया 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, लोकेशन इन द नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 सेल्सियस 37 डिग्री 6 नदन, लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 सेल्सियस 97 डिग्री 55 ईस्ट, साउथ मोस्ट पार्ट ऑफ द mainland कन्याकुमारी, साउथ मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन इंदिरा पॉइंट, पोजीशन इन टर्म्स ऑफ एरिया 7th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, पोजीशन इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन 2nd लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका एंड मालदीव। Here is a total description of India. I hope you all read this, and if you read this, it will help you in your competitive exams and you get very good knowledge about your country. Now we read administrative division of India. कि अब हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता है, हम लोग सिविक्स में भी पढ़ते हैं, अब ये भी हमें बताएंगे। India is divided into 29 states and 7 union territories for administrative purposes. ठीक है, इस इतने भागों में ये इंडिया हमारा बटा हुआ है। This division has been done mainly on the basis of language. और ये किसके बेसिस पे है, ये लैंग्वेज पे। जैसे आपको पता है कि हर स्टेट की अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं। The main parts about the administrative unit of India are as follows. अब कैसे है वो हमें ये बता रहे हैं। In terms of area, Rajasthan is the largest state while Goa is the smallest state. हमारा जो स्टेट है राजस्थान वो सबसे बड़ा स्टेट है और सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, गोवा। Among the union territories, the Andaman and Nicobar Island in the Bay of Bengal are the largest, while the island of Lakshadweep in the Arabian Sea are the smallest. ठीक है, अब अंडमान निकोबार जो वो कैसा है, लार्जेस्ट है, और स्मॉलेस्ट तो कौन सा है इसमें, लक्षद्वीप जो है वो स्मॉलेस्ट है। States have been further divided into district and तहसील। जो स्टेट्स होते हैं वो किस में बटे हुए होते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स में और तहसील में। उत्तर प्रदेश इज द मोस्ट पॉपुलर स्टेट एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स। सबसे ज़्यादा जो हमारी पॉपुलेशन है वो कहाँ की है, वो है उत्तर प्रदेश की, और वहाँ पर मैक्सिमम नंबर है डिस्ट्रिक्ट्स के, वहाँ पर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स बने हुए हैं। The 7 states in the north-east part of India are called the 7 sisters. ठीक है, नॉर्थ ईस्ट पार्ट के जो 7 स्टेट्स हैं उन्हें हम 7 सिस्टर्स के नाम से भी जानते हैं। तो व्हाट आर दीज, दे आर अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर एंड त्रिपुरा। दे आर कॉल्ड 7 सिस्टर्स। चंडीगढ़ इज द मोस्ट कॉमन कैपिटल ऑफ 2 स्टेट्स, पंजाब एंड हरियाणा। चंडीगढ़ को पंजाब और हरियाणा दोनों ही स्टेट्स की कॉमन कैपिटल है। देयर आर 7 such states which share their boundaries with the neighboring countries. These are, और 7 states ऐसे हैं कि उनकी जो बाउंड्री है वो भी टच कर रहे हैं। वो कौन कौन से हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर पाकिस्तान को भी टच कर रहा है और हमारे इंडिया में भी, लेकिन अभी तो ये पूरा इंडिया में ही है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। वेस्ट बंगाल, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। वेस्ट बंगाल, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। दिल्ली इज द नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया। अब क्या है, दिल्ली क्या है, हमारी कैपिटल है इंडिया की। तेलंगाना which was earlier a part of Andhra Pradesh came into existence as a new state in June 2014. तेलंगाना जो पहले आंध्र प्रदेश में इंक्लूडेड था उसको एक अलग से राज्य बना दिया गया था। कब, जून 2014 के अंदर। अब है फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। वो तो हो गया
डिवीजन कि कहीं माउंटेन होते हैं, कहीं आपकी हिल्स होती है, कहीं रिवर्स होते हैं, कहीं प्लेन्स होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस व्हाट आर द सिचुएशन एंड व्हाट आर द लोकेशन ऑफ इंडिया, वी रीड ऑल दिस इन दिस टॉपिक। फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। India is a vast country and has a variety of landforms. The Indian mainland can be broadly divided into 6 physical divisions. They are. अब आपको पता है कि इंडिया में बहुत सारे लैंडफॉर्म्स हैं और इसको 6 फिजिकल में बांटा गया है। 6 फिजिकल डिवीजन में अब वो कौन कौन सी हैं? द नदर्न माउंटेन्स, द नदर्न प्लेन्स, द पेनिnsulaर प्लेट्यू, द कोस्टल प्लेन्स, द इंडियन डेजर्ट, 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड। On the page number 375, you have a physical map of India. When you read and watch it, you all find that what are